Today we learn about the crashing of network. Okay, so here is the question. There are jobs, normal and crash time, normal and crash cost of the project are given. Indirect cost for the project is 300 rupees per day. Okay, there is a indirect cost that is 300 rupees per day. Okay, this is our question. The activities are 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 2 to 5, 4 to 6 and 5 to 6. Okay, the normal days are the normal time in days are 6, 8, 4, 3. Here the 3 to 4 activity, there are no normal time. So when we draw a network diagram, 3 to 4 activity having 0 time, so it would be a dummy activity. Okay, 3 4 activity will be a dummy activity. Why? Because there is no time, no normal time in this question. Similarly, cost are given. The cost are in rupees. The crash time is that 4522 dash 362, and the cross crash cost is given in the rupees. Okay, this is our question. Now first of all, what is the question they ask? Draw the network diagram and find the critical path. Okay, so we have to find the network diagram, then we find the float, and then we find the critical path. Now second question is, what is the normal duration and the cost project? Okay, so now we at the last means where the head activity is complete, what is the time? Okay, so that will give the normal duration time, and the cost will be find out by the direct cost plus the total normal cost. Okay, plus the indirect cost into the time duration, means now how many number of days are there in the completion of the project. Okay, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन नंबर ऑफ डेज इंटू 300 प्लस टोटल नॉर्मल कॉस्ट कितनी आई है 9200. ओके, सो वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. And the last question is, find optimal cost and duration. Now that is the word optimal cost. Okay, optimal cost, so we have to crash the activities and reduce the time of duration. Okay, so we find the value of optimal cost. Now we going for network diagram. Okay, so many of, first of all, the activity, first activity is 1 to 2. Okay, so we have right here 1 to 2. For activity 1 to 2, the duration is 6 days, so here we write 6. Second activity is 1 to 3, so we draw a one arrow, that is activity 1 to 3, and the duration of that activity is 8 days, so we write here 8 days. Now the second activity is 2 to 3. Okay, so 2 to 3 is here, and the days are 4. Third activity, sorry, fourth activity 2 to 4, so we draw another arrow, that is 2 to 4, and the time is 3 days. Okay, here is 3 days. Now 3 to 4, 3 to 4 has 0 normal time, so we draw a dummy activity, that is okay, and the cost days, number of days is 0. Okay, now next activity is 2 to 5 and having 6 days, so 2 to 5 having 6 days. Then 4 to 6, it gives 4 to 6, it gives 10 days, so we write here 10. And the last activity is 5 to 6, and that is 3, so 5 to 6, and that is 3. Okay, so we draw a network diagram. Now we write the flow, EFT and LFT. Okay, now we have to find out the value of EFT and LFT. EFT will be written in the left side coordinate, जो ऑर्डर पर रहेगी. ओके, उसमें जो लेफ्ट साइड पे रहता है, that is the EFT. So here it is the tail activity, it is the independent activity, so we start here from
0. So here we write 0. Second activity is 1 to 2. So we write 1 to 2. The number of days are 6. Okay, 1 to 2 activity khatam karne means after the completion of 1 to 2 activity, the number of days are 6. So 0 plus 6. This 0 plus 6 is 6. So we write here 6 in the left coordinate. Okay, then we go for 1 2 3. For 1 2 3 there are 8. Okay, and second 1 2 3 there are number of days are 8, and the another arrows are of 3. So 2 2 3. ओके, 3 पे 2 एरो आ रहे हैं, एक 1 से आ रहा है, एक 2 से आ रहा है. फ्रॉम 2 to 3 देर आर नंबर ऑफ डेज आर 4. सो हियर द EFT is 0. 0 plus 8 8. Here the EFT is 6. 6 plus 4 10. So what is the minimum? That is 10. 10 is minimum. So we write this 6 plus 4 10. So we write here 10. Okay, अगर कोई भी इवेंट पे 2 एरोज जा रहे हैं तो आपको दोनों का EFT प्लस जो नंबर ऑफ डेज है वो एडिशन करना है. ओके, जो भी मैक्सिमम रहेगा, ओके, जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आपको लिखना है. ठीक है, फिर आएगा आपका 3 to 4. 3 to 4 पे there are 0 time duration. So 10 plus 0. So here we write 10. But here also there are 2 arrows at 4. So 10 plus 0 10. And here the last arrow is the tail activity is 6 and tail activity is 2. And 2 का EFT कितना है 6. तो 6 plus 3 9. तो यहाँ पे 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है. तो दोनों में मैक्सिमम है 10. सो वी राइट हियर 10. दैट इज द लेफ्ट कोऑर्डिनेट. अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं. ओके, सेकेंड एक्टिविटी मीन्स नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2 to 5. देर आर ओनली 1 एरो. ओके, सो 2 to 5. तो यहाँ पे EFT कितना है इसका 6. 6 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं 6. तो 6 plus 6 12. सो वी राइट हियर 12. ओके, देन 5 to 6 and 4 to 6. So there are 2 arrows at 6. Okay, one is coming from 4 and second one is from 5. Here EFT is 10. Here EFT is 12. Now here 10 and the number of days 10. 10 plus 10 20. Here 12 12 and number of days is 3. Okay, so 12 plus 3 are 15. So 20 is maximum. So we write here EFT is 20. Okay, तो जब भी 2 या 1 से ज़्यादा एरो आए जो भी इवेंट पे, तो लास्ट का EFT देखो और आपको चेक करो कि कौन सा मैक्सिमम नंबर आ रहा है, तो वो आपको EFT लिखना है. मीन्स अभी हमने सिर्फ लेफ्ट कोऑर्डिनेट लिखे हैं. ओके, हियर 10. नाउ वी हैव टू राइट द LFT. जब भी हम लोग LFT लिखेंगे तो हम लोग बैकवर्ड जाएंगे. मीन्स पूरा जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसका हम लोग रिवर्स करेंगे. रिवर्स बैक जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ओके, हियर वी हैव टू राइट. यहाँ पे 20 EFT है तो LFT भी कितना आएगा, जहाँ पे जितना डेज में ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे हमको लिख देना है 20. ओके, नाउ 20 minus 10. सो हियर आएगा हियर 10. 20 minus 3. 20 minus 3 is 17. सो वी राइट हियर 17. ओके, नाउ 4 to 3 पे जाएंगे. सो 10 minus 0 10. तो यहाँ पे लिखेंगे 10. 10 में से 0 जाएगा. जब हम लोग बैकवर्ड करते हैं तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. यहाँ पे जाएंगे, अभी 2 पे जाएंगे तो देर आर 3 एरोज फ्रॉम 2. 2 में से 3 एरोज निकल रहे हैं. एक 5 पे जा रहा है, एक 4 पे जा रहा है, एक 3 पे जा रहा है. तो सबका सब्ट्रैक्शन करेंगे. जो भी मिनिमम आएगा वो यहाँ पे लिखने वाले हैं. तो यहाँ पे 17 है. 17 minus 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11. 10 minus 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7. 10 minus 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6. तो 6 इज मिनिमम. सो वी राइट हियर 6. सो LFT ऑफ दैट 2 इज 6. फिर हम लोग जाएंगे फिर से यहाँ पे
10 माइनस 8 करेंगे तो 0 2 आएगा, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आएगा, तो मिनिमम है 0, सो वी राइट हियर 0। ओके, इस तरह से हम लोग EFT और LFT फाइंड करते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हमें चेक करना है कि जो कौन सी जगह पे हमारा कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, जहाँ पे भी कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है डेट इज़ अवर क्रिटिकल पाथ। तो हमारा यहाँ पे सेम हो रहा है 1 to 2, ओके, 2 to 3, 3 to 4 means 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 6. Okay, so this will be our critical path. Okay, so we write here from diagram critical path is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 6, and the normal duration project is what, 20. So the normal duration of project is 20 days. Okay, now corresponding cost, so indirect cost plus direct cost, so it is 20. This is the another formula. Indirect cost is 20, 300 into number of days 20, so 300 into 20 plus total normal cost कितना है 9,200, so it is 15,200 rupees. Okay, the another formula is what, total normal cost, that is 9,200 plus this, okay, same, okay, total normal cost plus number of number of days plus indirect cost, that is 15,200 rupees. Okay, now we have to crash the activity. For crashing the activity we have to find the कॉस्ट स्लोप, कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना है उसके लिए हमें फाइंड करना होता है कॉस्ट स्लोप. ओके, द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट स्लोप इज क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट ओवर नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. ओके, सो कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला रहता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट ओवर नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. सो देर आर द एक्टिविटीज विच विल रिटर्न इन द हियर. ओके, द टाइम, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट आर all given. Okay, now we have to find the cost slope by the use of this formula. 1900 minus 1400, that is 500 divided by 6 minus 4, 2. 500 divided by 2, that is 250. Okay, similarly we find the all cost slope. Now check which is the minimum cost slope. So here 200 is the minimum. Okay, 200 is for which activity? Activity is 2 3. Okay, so we select this 2 3 activity. Here job 2 3 has minimum cost slope and hence it reducing by 1 day. Okay, so because if reduced by 2 days then it would not be to be parallel. देखो यहाँ पे जो 2 3 एक्टिविटी है विच इज़ क्रॉस बाय 1 डे, उसको हम लोग 1 डे से क्रॉस कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग इसको क्रॉस करेंगे 1 डे से क्रैश करेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह पे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि हम लोग एक दिन से उसको क्रैश कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा. तो 6 + 3 कितना आएगा यहाँ पे 9. ओके, अगर हम लोग उसको एक्चुअली देखो 2 to 3 एक्टिविटी, 2 to 3 एक्टिविटी पे हम लोग कितने दिनों से उसको क्रॉस कर सकते हैं. तो 2 to 3 एक्टिविटी में हम लोग को नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम देखना है. नॉर्मल टाइम है 4, क्रॉस टाइम है 2, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2. मीन्स 2 3 एक्टिविटी जो है वो हम लोग 2 दिन से उसको क्रैश कर सकते हैं. बट अगर हम लोग इसको 2 दिन से क्रैश करेंगे तो 6 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 में से हम लोग उसको 4 दिन लग रहे हैं जिसको हम लोग 2 दिन में ख़त्म करें. मीन्स 2 दिन से अगर हम लोग क्रैश कर रहे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. अगर 2 आ गया है तो 6 + 2 कितना आ जाएगा 8,
और यहाँ पे 0 + 8 भी कितना होगा 8, तो इट विल बी पैरेलल। ओके, तो पैरेलल हो रहा है तो हम लोग इसको 2 दिन से क्रैश नहीं कर सकते, तो हम लोग इसको क्रैश करेंगे कितने दिन से क्रैश करेंगे 1 दिन से। तो यहाँ पे कितना आ जाने वाला है अभी 3। ओके, तो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ओके, लेकिन ये लिखने से पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ता है कॉस्ट। ओके, अगर जो कॉस्ट है वो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 15,200, अगर 15,200 से कम आया अगर कॉस्ट तो ही हम लोग उसको क्रैश करेंगे। सो न्यू क्रिटिकल पाथ इज, अगर हम लोग उसको 1 दिन से क्रैश करते हैं तो हमारा जो न्यू क्रिटिकल पाथ आएगा वो कितने दिन का होगा 20 दिन का है, उसमें से 1 दिन हमने क्रैश कर दिया तो 19 डेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट है, टोटल आपका कॉस्ट है 15,200 प्लस 1 into 200 minus 300. Okay, so it is 1,500 and means 15,100 rupees. The another formula is, that is the total normal cost, that is 9,200 plus हमने जो एक्टिविटी है 2 3 वो कितने दिन से क्रैश की है वह 1 दिन से, तो 1 into 200 प्लस हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे अभी 19, तो 19 इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज 300, सो वी गेट 15,100 रुपीज़। आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आवर नेक्स्ट नेटवर्क डायग्राम इज दिस। ओके, बाकी का सेम डायग्राम ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे जो 4 लिखा था यहाँ पे 4 थे डेज, वहाँ पे हमने क्रैश कर दिया और कितना आ गया नंबर ऑफ डेज 3। तो पूरा जो हम लोग ये लिख रहे हैं वो पूरा चेंज हो जाएगा, मीन्स 0 6 6 + 3 9 0 + 8 8, so 6 + 3 9, 9 is maximum, so we write here 9, 9 + 0 9, okay, 9 + 10 19। ओके, यहाँ पे आएगा 6 + 3 9 और यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी 6 + 3 9 आ गया, तो ये भी अभी आपका क्रिटिकल पाथ बनने वाला है। ओके, यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी बनने वाला है। सो 6 प्लस ये तो सेम है, यहाँ पे तो कोई भी हमने चेंजेस नहीं किया, तो बाकी का सेम रहेगा। जब हम लोग रिवर्स जाएंगे तो 19 19 - 10 9, ओके, 9 - 0 9, 9 - 8 1 एंड ये 9 - 3 6, 6 - 6 0। ओके, तो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे एक और क्रिटिकल पाथ बना है, ये रहा 2 to 4 वाला। ओके, सो हियर 2 critical paths are developed. Path 1 is 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6, and the second one is 1 to 2, 2 to 4, and 4 to 6. Okay, now the minimum, again we find the minimum cost slope. The minimum cost slope is 4 to 6 of rupees 250. Minimum cost slope is 4 to 6 here, 4 to 6 of 250 rupees. Okay, so रिड्यूसिंग टाइम बाय 4 डेज। क्यों 4 डेज से रिड्यूस करेंगे, तो हम लोग 4 to 6 एक्टिविटी देखते हैं। 4 to 6 एक्टिविटी, 4 to 6 में नॉर्मल टाइम है देन 10 डेज एंड क्रैश टाइम रहेगा 6 डेज, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 6 एक्टिविटी है वो हम लोग 4 डेज से क्रैश कर सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, देख लेते हैं। 4 to 6 एक्टिविटी, 4 to 6 एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट, तो हम लोग ये एक्टिविटी को क्रैश करने वाले हैं 4 दिन से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, सो न्यू क्रिटिकल पाथ इज ओके 19 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 15 डेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट इज दिस 15,100 प्लस 4 दिन से क्रैश किया तो 4 into 250 - 4 into 300। ओके, सो आंसर आएगा 14,900। द अनदर फॉर्मूला इज टोटल नॉर्मल कॉस्ट, पहले जो क्रॉस की एक्टिविटी 1 दिन से, सो 1 into 200 प्लस दूसरी बार क्रैश किया 4 दिन से, तो 4 into कितना उसका कॉस्ट स्लोप था 250, तो 4 into 250 प्लस नंबर ऑफ डेज कितने रिमेनिंग है तो 15 into इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है 300, सो फाइनल आंसर आएगा 14,900 रुपीज़। ओके, सो हम लोग ये क्रैश करके फिर से लिखते हैं। यहाँ पे कितना था 10 था, तो ये क्रैश हो गई, कितने दिनों से क्रैश हुई 4 दिन से क्रैश हुई, तो यहाँ पे 10 - 4 आएगा 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा पूरा नेटवर्क डायग्राम। तो अभी 0, ओके, यहाँ पे आएगा
6, यहाँ पे आएगा 6, ओके। 6 + 3 9, 9 + 0 9, 9 + 6 15, ओके। रिवर्स बैक जाएंगे तो 15, 15 - 6 9, यहाँ पे 15 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 - 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 9 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 9 - 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6। मीन्स ये सारे क्रिटिकल पाथ बन गए, ओके। 12 - 6 6, 9 - 3 6, 9 - 3 6, ओके। तो ये पूरा जो है 1 2 2 1 2 3, वो ये जो पूरा है वो पूरा क्या बन गया क्रिटिकल पाथ बन गया है। देखो हियर 3, एक ही बचा हियर 3 critical paths are developed. Path 1 1 2 3 4 6, second is 1 2 4 6, and third one is 1 2 2 5 6, okay. So here 1 2 3 4 6, second one is 1 2 4 6, third one is 1 2 3, sorry 1 2 5 6, okay. So there are 3 critical paths. Now the next minimum cost loop is at 1 2 ऑफ ₹250, ओके। हम लोग जो देखते हैं दूसरा, तो दूसरा एक और कॉस्ट लूप है 250, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं टाइम, यहाँ पे है नॉर्मल टाइम है 6 और क्रैश टाइम है 4, तो 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो हम लोग इसको नंबर 2 डेज से क्रैश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्रैश करेंगे सिर्फ एक ही दिन से। क्यों एक दिन से क्रॉस करेंगे? अगर हम लोग उसको 2 दिन से क्रॉस करें 1 to 2 एक्टिविटी, अगर हम इसको एक दिन से क्रॉस करें के तो जैसे कि वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था वैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो होगा वो पैरेलल पाथ हो जाएगा। तो हम लोग ये 1 to 2 एक्टिविटी को एक दिन से क्रैश करेंगे। सो द न्यू क्रिटिकल पाथ 15 डेज था, तो उसमें से एक दिन और क्रैश किया तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 14 हो गए, ओके। तो फॉर्मूला के हिसाब से 9200 नॉर्मल कॉस्ट है, एक दिन से पहले क्रॉस किया था 200 कॉस्ट लूप से, सो 1 × 200, फिर 4 डेज से क्रैश किया, कॉस्ट लूप था उसका 250, तो 4 × 250 प्लस लास्ट में फिर से हमने एक दिन से क्रैश किया और उसका कॉस्ट लूप भी कितना है 250, तो प्लस नंबर ऑफ डेज हमारे पास रिमेनिंग है 14 इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट है 300। सो फाइनल आंसर इज 14,850 रुपीज़, ओके। एंड द क्रैश द एक्टिविटी इज हियर। सो यहाँ पे 6 था तो 6 की जगह पे आ जाएगा 5, सो 0 to 5, ओके। एंड 8 0 + 5 5, 0 + 8 8, 5 + 3 8, ओके। अभी हम लोग किसी से भी कहीं से भी कैलकुलेट करेंगे, ये से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से, आंसर इज द सेम, ओके। यहाँ पे 2 एरो जा रहे हैं, आप लोग काउंट करो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 2 एरो जा रहा है, 8 + 0 करेंगे तो 8, 5 + 3 करेंगे तो 8, यहाँ पे भी 2 एरो जा रहे हैं तो 8 + 16 इज, सॉरी 8 + 6 इज 14, 11 + 3 इज 14। मीन्स क्रैश करने की वजह से पूरा जो नेटवर्क डायग्राम है वो उसमें जो जितनी भी एक्टिविटी है वो क्रिटिकल हो गई है। मीन्स जो पूरा पाथ है वो क्रिटिकल पाथ हो गया। सो देयर आर नो एनी अदर पाथ विच इज़ नॉट क्रैश्ड। जो सारे पाथ थे वो सारे क्रैश्ड हो गए। सो नाउ नो पाथ इज पेंडिंग फॉर क्रैशिंग। सो द फाइनल क्रिटिकल टाइम is 14 days and the corresponding cost is ₹14,850, okay।